Hello kids, today I am here with class 4th revision of essay 2. So there are total chapter number 1, 4, 5, 7 and 12 to 22. So total 15 chapters are coming in your essay 2. So here are the revision of these chapters. So let us be start with the revision of essay 2. So this is for your help. This revision is for your help so you can learn more and more. Okay, and for just like the for your paper pattern you can do this type of revision worksheets. Okay, so let us start. First question is fill in the blanks. So here are question number 1. And a dash map is rough map of a place. What we call the rough map? We call rough map mental map. Mental. MENTAL. A mental map is rough map of a place. Second, and that situation is a condition when you feel that your life is in danger. In which situation you feel in danger? When there is an emergency situation, we feel danger. So write the answer emergency. EMERGENCY. ओके, सो इमरजेंसी सिचुएशन जो होती है वो ऐसी कंडीशन होती है जब हमें डेंजर फील होता है. नेक्स्ट, a dash is a big area where many people come to buy and sell different things. So what we call this place? This place is called market. MARKET. Market is a place where people come for sale and buy different things. Next, question number 4. Question number 4 is a dash map shows all the roads of a city. किसी भी सिटी की जो रोड होती है वो किस टाइप के मैप में शो होती है? रोड मैप. ROAD. रोड. नेक्स्ट, नंबर 5. द प्रोसेस ऑफ कटिंग राइप क्रॉप्स इज कॉल्ड. जब क्रॉप्स पक जाती है, ओके, तो उनकी कटिंग होती है और इस प्रोसेसिंग कटिंग ऑफ क्रॉप्स की जो प्रोसेस होती है इट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग. HARVESTING. Okay, what is harvesting? Cutting of crops. Next is the invention of dash brought about a significant change in the modes of transport. तो किसके इन्वेंशन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में एक बहुत ज्यादा क्रांति आई थी? ओके, एक चेंज आया था. सो आंसर इज व्हील. WHEEL. व्हील. नेक्स्ट, नंबर 7. Dash does not make its nest and lay its eggs in crow's nest. So which bird is a lazy bird which does not make its nest? So answer is cuckoo. CUCKOO. कुक्कू एक बहुत ज्यादा लेजी बर्ड है और ये अपना खुद का नेस्ट नहीं बनाता है और अनदर बर्ड के नेस्ट में एग्स ले करता है. ओके, नेक्स्ट इज फूड हाइजीन मीन. फूड हाइजीन का क्या मीन्स होता है? कीपिंग और फूड डैश एंड डैश टू ईट. सो फूड हाइजीन मीन्स कीपिंग और फूड क्लीन एंड safe to eat. So clean. CLEAN. Clean and safe to eat. Next, houses are made up of mud, straw, leaves and cow dung. What we call that? Houses that made up of mud, straw, leaves, cow dung, we call it kacha houses. KACHCHA. Kacha houses. Next is seasons change due to the changing dash condition. तो सीजन्स जो चेंज होते हैं वो किसकी कंडीशन के चेंज होने से होते हैं? वेदर कंडीशन. WEATHER
WEATHER, क्योंकि वेदर कंडीशंस जो होती है वो डे बाय डे चेंज होती रहती है। ओके, वेदर कभी भी सेम नहीं होता है, वेदर कंडीशन चेंजिंग डे बाय डे। ओके, अब वेदर कंडीशन पे ही सीजन्स आपके डिपेंड होते हैं, क्योंकि जब व्हाट इज सीजन, सीजन इज द व्हेन द वेदर कंडीशन रिमेन फॉर अ 1 और 2 मंथ। जब वेदर कंडीशन 1 या 2 महीने एक जैसा रहता है, कूल है तो कूल, हॉट है तो हॉट, विच इज कॉल्ड सीजन। तो सीजन चेंज होते हैं ड्यू टू चेंजिंग वेदर कंडीशन। नेक्स्ट इज dash is the purest form of natural water. What is the purest form? Rain. Rain is the purest form of natural water. Next, the choice of transport depends on the dash we travel. तो जो भी आप मोड चूज कर रहे हो कहीं पे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए, तो वो किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड ऑन आवर डिस्टेंस, कि हम कितने डिस्टेंस पर जा रहे हैं। डिस्टेंस, DISTANCE। ओके, अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है तो उस टाइप का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको यूज करना है। शॉर्ट डिस्टेंस पे जा रहे हो तो उस टाइप का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करना है। सपोज कि अगर हमें नियर बाय प्लेसेस पे जाना है, सो वी यूज बाईसाइकिल। ओके, अगर हमें 4 to 5 किलोमीटर जाना है, देन वी यूज अ स्कूटर। ओके, और अनदर 20 किलोमीटर, देन वी यूज कार। एंड इफ we want to go 600 kilometer, then we use train, or other countries if you want to go, so we use aeroplane. So this is depend on the distance. Now next, number 13, dash are flowing bodies of water. So what we call the flowing bodies of water, जब पानी जिस बॉडी से बहता रहता है, इट इज कॉल्ड रिवर्स। RIVERS, rivers are the water bodies that always flow. Okay, in dash season the days are short and nights are long. So there are 5 seasons, but in which season uh, days are short and nights are long? So this season is winter, WINTER। विंटर सीजन क्या होता है? डेज तो होते हैं हमारे शॉर्ट और नाइट्स होती है लॉन्ग। Dash soil is light in color with large particle. So answer is sandy soil. So there are 3 types of soil, SANDY, sandy soil. Okay, so there are 3 types of soil: sandy soil, clay soil, loamy soil. So sandy soil is a light in color and has large particles. Next, we add dash tablet to kill microorganisms present in water. Which tablet we use to kill microorganisms in water? So we use chlorine tablets. CHLORINE. Chlorine tablets we use to kill the microorganisms in वाटर। वाटर को क्लीन करने के लिए हम क्लोरिनेशन की प्रोसेस करते हैं, जिसके अंदर हम टैबलेट्स को वाटर के अंदर डालकर वाटर को क्लीन करते हैं। नेक्स्ट इज एंड डैश इज टीम ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। तो लिविंग और नॉन लिविंग की जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी टीम को हम बोलते हैं इकोसिस्टम, जिसमें हम एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं फॉर फूड। सो आंसर इज इकोसिस्टम, ECO, इको, SYSTEM। Next, 18 number is a group of dash make a family. So group of people make a family. PEOPLE. What is family? Family is a group of people. Next is we should keep medicine and sharp thing out of reach of. हमें medicines और जितनी भी sharp things होती है उन्हें किसके पहुंच से दूर रखना है? आंसर इज चिल्ड्रन, बच्चों के पहुंच से। CHILDREN। क्योंकि जो स्मॉल किड्स होते हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता है कि ये मेडिसिन है, ये शार्प ऑब्जेक्ट है, इनसे हमें कट लग जाएगा। सो वी कीप ऑल दिस थिंग आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज डैश कलर इज यूज टू शो वाटर ऑन मैप। मैप के अंदर वाटर कौन से कलर से शो होता है? आंसर इज ब्लू, BLUE, blue. Next is dash are also called tablelands. Tablelands हम किसको बोलते हैं? Plateau. Spelling is
TEAUS. Plateau are the landforms that we call also tableland. Okay, just it looks like a table because it is higher than its surrounding. And if we see it, it looks like a table. So we call it tableland. The process by which plants make their food is called, plants अपना जो खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. CHOTO फोटो, SYN sin, THESIS synthesis. Next, डैश इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है हिमालय. HIMALAYAS. Himalayas is the highest mountain range in the world. Next is relatives who do not stay with us. ऐसे रिलेटिव्स जो हमारे साथ नहीं रहते हैं, दे आर और डैश फैमिली. वो हमारी कैसी फैमिली होती है? एक्सटेंड फैमिली होती है. EXTENDED. एक्सटेंड फैमिली जैसे आपके ग्रैंडफादर वगैरह के रिलेटिव्स हो गए, मम्मा के रिलेटिव्स हो गए, तो दे आर और एक्सटेंड फैमिली. वाटर प्रिजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट टू डैश और एनवायरमेंट. वाटर प्रिजर्वेशन इम्पॉर्टेंट है क्यों? टू प्रोटेक्ट और एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए. PROTECT, प्रोटेक्ट. Number 26 is dash is the state tree of Rajasthan. What is the state tree of Rajasthan? Khejri. Khejri is the state tree of Rajasthan. KHEJRI. Khejri. And what is the national tree of India? Banyan tree. Next, dash is local government body in rural areas. Rural areas में जो villages के development के लिए जो हेल्प करते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट की जो बॉडीज होती हैं, जो रूरल में क्या करती हैं? इम्प्लीमेंट्स करती हैं. वहाँ की जो रोड्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, इन सब की ये टेक केयर करती है, तो वो होती है पंचायत. PANCHAYAT. पंचायत. PANCHAYAT. पंचायत. पंचायत जो है वो एक लोकल गवर्नमेंट बॉडी होती है जो विलेज के टेक केयर करती है. विलेज में हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रोड्स, इन सब के जो भी अवेलेबिलिटी होती है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. नेक्स्ट इज एंड द हेड ऑफ द पंचायत इज सरपंच. सरपंच इज द हेड ऑफ पंचायत. पंचायत मेक इन विथ 5 पीपल्स विच वी कॉल पंच. Sorry, okay, पंच are the group of 5 people and head is sarpanch. The largest source of water on the earth is. अर्थ पे सबसे बड़ा जो वाटर का सोर्स है वो है ओशन. OCEAN, ocean. Next is the small area of water in desert. डेजर्ट में वो स्मॉल एरिया को क्या कहते हैं? Where plants grow and people live. वैसे तो देखो डेजर्ट में आपको वाटर बहुत कम होता है, बट देयर इज सम ओएसिस. ओके, वहाँ पर कुछ ओएसिस होते हैं जो कि क्या होता है, जहाँ पर प्लांट्स ग्रो होते हैं और लोग रहते हैं. तो ये एक वाटर होता है, वाटर बॉडीज की जैसे होता है. OASIS. एक स्मॉल एरिया होता है वाटर का ओएसिस. ओके, उसके चारों तरफ प्लांट्स लगे रहते हैं और वहाँ पे लोग रहते हैं. ओके, तो क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वहाँ पे. नेक्स्ट, नंबर 30. The method of collecting rain water from rooftop. रूफटॉप से हमारी जो घर की छत होती है वहां से रेन वाटर को कलेक्ट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग. RAIN रेन, WATER वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. HARVESTING रेन वाटर हार्वेस्टिंग. नेक्स्ट, द डैश फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड स्पीशीज. जो भी स्पीशीज है जो इंडेंजर्ड है, ओके, मतलब जो लुप्त होने वाली है, उनके प्रोटेक्शन पे कौन फोकस कर रहा है? सो इनके ऊपर फोकस कर रहा है WWF. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडेंजर्ड स्पीशीज की प्रोटेक्शन में हेल्प कर रही है. ओके,
और इसका जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। नेक्स्ट, द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, स्टोन, सैंड एंड वाटर इज कॉल्ड concrete. concrete. Concrete is the mixture of sand, cement, stone, sand and water. Next is dash make its nets by collecting pebbles and bones and laying them on ground. वो कौन सा वर्ड है? ओके वो जो कि पेबल्स और बोन्स, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं वो पेबल्स कहते हैं, उनको पेबल्स और बोन्स को इकट्ठा करके उनको जमीन पे बिछा करके अपना नेस्ट बनाता है। आंसर इज पेंगुइन। PENGUIN पेंगुइन। Number 34 is farmer add dash in the soil to make it rich in minerals. फार्मर सॉइल के अंदर ऐसे क्या चीज ऐड करते हैं जिससे उनकी जो सॉइल है वो उसके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में मिनरल्स आ जाते हैं। तो फार्मर ऐड मैन्योर्स, क्या ऐड करते हैं? मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ये काफी हेल्पफुल होते हैं सॉइल के अंदर मिनरल्स ऐड करने में और जो कि प्लांट से ग्रो में काफी हेल्पफुल होते हैं। Next, question number 2 is give two names for the following. अब यहाँ आपको जो दे रखे हैं क्वेश्चन, उनके आपको टू एग्जाम्पल्स बताने हैं। जैसे वाटर बॉर्न डिजीज, आपको 2 वाटर बॉर्न डिजीज के नेम बताने हैं जो कि कंटामिनेटेड वाटर्स होते हैं। मीन्स अगर हमने डर्टी वाटर ड्रिंक कर लिया है तो उसकी वजह से हमें वाटर बॉर्न डिजीज हो जाएंगे। तो उनके नेम है टाइफाइड, डायरिया, जॉइंडिस। यू कैन राइट एनी ऑफ देम। TYPHOID, टाइफाइड, जॉइंडिस, JAUNDICE, टाइफाइड एंड जॉइंडिस, ये वाटर बॉर्न डिजीज है। यू कैन राइट डायरिया आल्सो। और वॉम इन स्टमक। नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के नेचुरल सोर्सेज के बारे में यहाँ पे लिखना है, मैनमेड नहीं है या नेचुरल है। तो वी कैन राइट रिवर, okay, rain or lake. You can write any of them. Next, birds of prey. What are birds of prey? That hunt their prey. Okay, they for their food they first they hunt the animal. Okay, उनको hunt करके ही eat करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि ऑलरेडी जो हंटेड होते हैं, जिनका ऑलरेडी शिकार किया हुआ होता है, तो जैसे एक होते हैं आपके एनिमल्स जो कि आपकी एनवायरमेंट को क्लीन रखने के काम में आते हैं, वो नहीं है। ये बर्ड्स ऑफ प्रे हैं जो खुद अपना शिकार करते हैं। ओके, दे हंट देयर प्रे फर्स्ट, ओके, आफ्टर दे ईट इट, सो दे आर बर्ड्स ऑफ प्रे। ठीक है, शिकार पकड़ते हैं अपना। तो ये है वुल्चर, VULTURE, vulture and eagle, EAGLE. Next, tree that have tap root. ऐसे ट्रीज के नेम रखने हैं जिसमें टैप रूट्स होते हैं। मीन्स टैप रूट जैसे कि एक इसमें मेन रूट होती है, साइड से आपकी स्मॉल स्मॉल सी सेकेंडरी रूट्स निकली रहती है। तो ये होती हैं आपके मैंगो, MENGO मैंगो, और नीम, NEEM नीम ट्री। नेक्स्ट है हर्बीवोरस। Herbivores are the animals that eat plants, just like cow, goat, sheep, horse. These are herbivores. Types of families. Families 2 types, nuclear and joint. So we can write here JOINT, joint family, and nuclear family, NUCLEAR, nuclear family. नेक्स्ट इज लैंडफॉर्म्स। अब यहाँ आपको लैंडफॉर्म्स के नेम लिखने हैं। लैंडफॉर्म डेजर्ट हो गया, माउंटेन्स हो गए, हिल्स हो गए हैं, ये सब लैंडफॉर्म्स है। प्लेटो हो गए हैं। यू कैन राइट एनी ऑफ दैम। डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट एंड माउंटेन। नेक्स्ट,
लोकल इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं आपके सराउंडिंग में, जो आपके नेबरहुड्स होते हैं, ठीक है। सो लोकल इंस्टीट्यूशन में हम राइट कर सकते हैं स्कूल, SCHOOL, स्कूल, हॉस्पिटल, HOSPITAL, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, these are local institutions. नेक्स्ट, एनिमल एक्टिव एट नाइट, ऐसे एनिमल जो रात को एक्टिव होते हैं, दे आर आउल, बैट, these animals active only at night. Next, desert plants, जो प्लांट्स डेजर्ट में ग्रो होते हैं, तो कैक्टस, CACTUS, कैक्टस, बबूल, डेट प्लाम, DATE, डेट प्लाम. नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कोई से भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के नेम आप लिख सकते हैं, स्कूटर, कार, एरोप्लेन, बस, कार, बस. Next, creepers. What are creepers? Creepers are the plants that grow along the ground and they have heavy fruits. So, watermelon, WATER, water, MELON, melon. Watermelon का fruit काफी ज़्यादा heavy होता है, so they grow along the ground. And pumpkin, PUMPKIN. Next, mountain ranges. So एक तो हमने अभी राइट किया ही था, हिमालय, HIMALAYAS, हिमालयाज, और एक है एंडीज, ANDES, एंडीज. These are mountain ranges. Next, aerial animals that can fly in the sky. So we can write sparrow, 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 and pigeon, PIGEON. सो एरियल एनिमल्स जो है वो स्काई में फ्लाई करते हैं, मोस्टली इनका टाइम जो है वो स्काई में फ्लाई करने में स्पेंड होता है. नेक्स्ट, इमरजेंसी सिचुएशन. से इमरजेंसी सिचुएशन जो कंडीशंस होती है जो कि सडनली आती है, इमरजेंसी सिचुएशन में जिसमें हम डेंजर्स भी काफी फील करते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं फ्लड और अर्थक्वेक, EARTH, अर्थ, QUAK, यह इमरजेंसी सिचुएशंस होती है. नेक्स्ट, सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड. जब आपको टाइफाइड होता है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं? हाई फीवर, स्टमक एक, और हेडेक. यू कैन राइट एनी ऑफ देम. हाई फीवर, FEVER, stomach pain, you can write headache also. Uses of water, पानी के क्या क्या uses हैं? So it's very easy: drinking, cooking, bathing, anything you can write here. Drinking and cooking. Question number 3. और question number 3 is identify the method of food preservation. फूड को प्रिजर्व में सेफ रखने के लिए कौन कौन से मेथड्स जो है हम यूज करते हैं. सो यो अब आपको कुछ क्लूज दे रखे हैं, इसको आइडेंटिफाई करके आपको आंसर राइट करना है. जैसे प्रिजर्व फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाय एडिंग सॉल्ट, शुगर एंड स्पाइसेस. सो सॉल्ट, शुगर और स्पाइसेस ऐड करके हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में in this method we preserve the fruits and vegetables by adding salt, sugar and spices. What we call this method of preservation, we called it pickling. तो पिकल्स जो आप बनाते हैं उसमें आप सॉल्ट, शुगर और स्पाइसेस यूज करके वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को काफी लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रखते हैं. PICKLING, पिकलिंग. नेक्स्ट, प्रिजर्व फूड बाय हैंगिंग दैम ओवर अ स्मोकी फायर. आप अपने फूड को एक स्मोकी फायर के ऊपर हैंग करते हैं टू वार्ड ऑफ बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए. सो आंसर इज स्मोकिंग, SMOKING, स्मोकिंग. क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. अब यहाँ पर आपको इनकी फुल फॉर्म्स राइट करनी है. So WWF and CNG, what is the full form of WWF? मैंने ऑलरेडी बता दिया है, वर्ल्ड
WORLD वर्ल्ड, WILD वाइल्ड, LIFE लाइव, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, FUND फंड. Okay, next is CNG. CNG means compressed natural gas. COMPRESSED compressed NATURAL natural gas. Compressed natural gas एक तरह का फ्यूल है which we used in vehicles, and WWF is an organization that help in protecting endangered species. Next question number 5 is look at the railway ticket and complete the list given below. अब यहाँ पर आपको एक प्लेटफॉर्म टिकट दे रखे हैं हम लोगों ने यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो आपको आइडेंटिफाई करने हैं. तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि नेम ऑफ ट्रेन. तो यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि एक रेलवे टिकट्स पर होती है, जैसे कि नेम ऑफ ट्रेन हो गई है, ओके, बोर्डिंग कहाँ से है, कहाँ से, ओके, बोर्डिंग कहाँ से और गाड़ी नंबर, डेट ऑफ ट्रैवलिंग, डिस्टेंस बिटवीन, कितना डिस्टेंस हमें कवर करना है, कॉस्ट क्या है टिकट की, ओके, और एज ऑफ ट्रैवलर्स, तो जो भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं उन लोगों की कितनी एज है, बर्थ नंबर कितना है, उनका कोच नंबर कितना है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिलती है. डेस्टिनेशन भी है, देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, तो इससे ही रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको देखने हैं और उनके आंसर्स राइट करने हैं. सो आपका इसका फर्स्ट नंबर है नेम ऑफ द ट्रेन. अब हमें फाइंड आउट करना है नेम ऑफ द ट्रेन, तो इसका एरो बन रहा है यहाँ. तो आंसर इसका है FZR, BCT, JANTA. This is the name of the train. नेक्स्ट, डेट ऑफ ट्रैवल. ये जो टिकट है ट्रैवल की क्या डेट है, तो यहाँ आपको दिख रहा है डेट ऑफ ट्रैवल, ये डेट ऑफ ट्रैवल. तो आंसर इज 2010-2007 का टिकट है. नंबर ऑफ कोच, कोच का क्या नंबर है, S7. नेक्स्ट, नंबर ऑफ ट्रेन का नंबर क्या है, तो ट्रेन नंबर आपको यहाँ दे रखा है, ये ना ट्रेन नंबर 9024. नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ द टिकट की कॉस्ट कितनी है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ टिकट, ₹1033. नंबर ऑफ बर्थ, these are the number of birth, sorry, नंबर ऑफ बर्थ. सो यहाँ पर है सीट नंबर आपको राइट करनी है, बर्थ मीन्स यहाँ पर आपकी सीट नंबर पूछ रहा है, तो आपकी सीट नंबर कितनी है यहाँ पे 42, 43, 44. तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सिंबल एंड साइंस. तो आपके बुक में बहुत सारे सिंबल एंड साइंस हैं, तो आपको सारे ही सिंबल और साइंस को आइडेंटिफाई अच्छे से करना आना चाहिए. यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं. तो आपको जो फर्स्ट सिंबल दे रखा है विच इज द नेशनल कैपिटल, ये सिंबल किसका है, नेशनल कैपिटल, NATIONAL, नेशनल कैपिटल. और जो सेकंड सिंबल है विच इज ऑफ अ डैम. आपके बुक में बहुत सारे सिंबल्स है, रिवर्स है, कैनल है, रोड मेटल्ड, रोड अनमेटल्ड और ब्रिजेस, बहुत सारे सिंबल्स हैं, तो आपको सबको अच्छे से देख के आना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज लुक एट द स्केच केयरफुली एंड राइट हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग आर. अब यहाँ पर आपको एक मैप दे रखा है एक पर्टिकुलर प्लेस का, ठीक है, और यहाँ पर आपको एक
की भी दे रखी है। की क्या होती है? किसी भी मैप के अंदर की इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंबल्स। जितने भी सिंबल्स है, ये वाली ये जो सिंबल्स है, इनका एक्सप्लेनेशन, इनको हम क्या, इसको पूरी को क्या बोलते हैं? की बोलते हैं। ओके, समझ आ रहा है? सो की इज अ एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंबल्स। तो यहाँ से हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे। वाटर टैंक, सिनेमा हॉल, पेट्रोल, स्कूल, पार्क और हॉस्पिटल। तो आपको यहाँ पे कुछ आंसर देना है कि यहाँ पे स्कूल्स कितने हैं। फर्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर देयर। यहाँ पर ये प्लेसेस कितने हैं। फर्स्ट है आपका स्कूल। अब स्कूल के लिए आपके पास एस का सिंबल है। अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करने हैं एस सिंबल कितना है। सो फर्स्ट एस सिंबल इज हेयर, इज, और कहीं तो मुझे दिख नहीं रहा है। सो वी राइट ओनली 1। सेकेंड है टेम्पल। तो टेम्पल का सिंबल, check the symbol of temple. This is the symbol of temple. So let's count with me. 1, 2, 3, 4. So there are 4 temples. Right, number 4. Next. Number 5 is park. So this is the symbol of park. Let's count. 1, 2, 3, 4. So there are 4 parks. Next, water tower. Let's count water tower. Water tower. 1, 2, 3. So there are 3 water towers. Right, 3. Okay, very easy. Last is number 8. Yes. Study the physical map of India. आपको इंडिया का एक फिजिकल मैप दे रखा है, तो इसको आपको अच्छे से स्टडी करना है कि यहाँ पर आपको रिवर्स के नेम दे रखे हैं। देयर आर 4 मेन डायरेक्शन। सबसे पहले अपने डायरेक्शंस को यहाँ पर राइट कर लीजिए। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, सो नॉर्थ में ईस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो यहाँ पर आपको ओशंस और वाटर बॉडीज को देखना है। थार डेजर्ट है यहाँ पर, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे इंडिकेट कर रही है। और यहाँ पर आपको रेफरेंस भी दे रखे हैं। ब्राउन कलर नदर्न माउंटेन्स को शो कर रहा है, ग्रीन जो है वो नदर्न प्लेन्स को शो कर रहा है, लाइट ग्रीन कोस्टल प्लेन्स को ग्रीन कर रहा है, ऑरेंज पेनिनसुला प्लेट्यूज को क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है यहाँ पर। एंड द इंडियन डेजर्ट जो है आपको इस कलर का दिख रहा है, और आइलैंड जो आपको डार्क कलर के दिख रहे हैं। तो इस तरह से आपको स्टडी मैप को स्टडी कर लेना है। और इससे रिलेटेड लेट्स बी चेक व्हाट आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। फर्स्ट इज बे ऑफ बंगाल इज लाइज इन द डैश ऑफ इंडिया। वहां हमें फाइंड आउट करना है बे ऑफ बंगाल। तो दिस इज बे ऑफ बंगाल, और ये कौन सी डायरेक्शन में है? ईस्ट। So we write here east. E-A-S-T, east. Next. Dash is the largest desert of India lies in west. So west is there. And let's check the name of the desert. Desert name is Thar Desert. The Great Indian Thar Desert. So write the name. T-H-A-R, Thar Desert, D-E-S-E-R-T. Thar Desert is the largest desert in India, which lies in the west. Next, river dash and dash flowing from west to east. अब west से निकल के east साइड में जा रही है, तो यहाँ से हमें दिख रही है west, यहाँ से originate हो रही है ये 2 rivers, 1 and 2. The name of these rivers first is Narmada, N-A-R-M-A-D-A, नर्मदा, और यहाँ पर है तापी।
Tapi. These are the two rivers that flow from uh, west to east side. Next is last question. Last question is that sea lies in the west of India. इंडिया के वेस्ट साइड में कौन सा सी है? विच इज अरेबियन सी. Arabian. Arabian Sea. In the south there is an Indian Ocean. इंडियन ओशन कहाँ पर है? वेस्ट में है. अब यहाँ पर आपको आइलैंड्स भी दिख रहे हैं. यहाँ पर आपको वेस्ट में तो मिलेंगे लक्षद्वीप आइलैंड और ईस्ट में यहाँ पर है अंडमान निकोबार आइलैंड्स. Okay, so our revision is done. I hope this is very helpful for you, and I tell you that revise the chapters, okay, and do the revision worksheet. So hope all the questions are very helpful to you for your SE2 exams. So best of luck all of you. Goodbye and take care.